Hello everyone, welcome to EduTap and welcome to another important CT360 series session in which we cover the most important G and ESI current affairs from the exam point of view. And my dear friends, I am back with a very important and interesting session for all of you in which we will be covering the most important current affairs of 6th to 7th of December 2024, and this session is going to be very useful for all the aspirants who are preparing for RBI, NABARD and the SEBI exam. And along with these exams, if you are preparing for any other banking exam as well guys, तो यहाँ पर सभी exams के लिए ये current affairs काफी important हैं. And if you are really preparing for the current affairs for these exams, definitely these sessions are really going to help you out in your exam preparation. And guys, before moving ahead into the session, एक update मैं आपको देना चाहता हूँ that today we are taking this session at 5 p.m. and this session was always scheduled on every Tuesday, Thursday and Saturday at 5 p.m. But from the next Tuesday, that is from 10th of December, every Tuesday, Thursday and Saturday, I will be meeting you at 7 a.m. in the morning for this particular session, and we will be starting our bright day with the brightest of the current affair news articles that we need to remember from the exam point of view. ठीक है, तो make sure कीजिए कि आप ये change जो है note करके रखिए. From 10th December we will be meeting you every Tuesday, Thursday and Saturday at 7 a.m. in the morning. So make sure कि आप इस पॉइंट को नोट डाउन करें और आप मुझे सुबह मिलें at 7 a.m. on our EduTap's YouTube channel. Now guys, coming back to this session, so the topics that I am going to discuss in the today's sessions are mentioned here. So total of 7 topics we will be discussing here in the today's session, and let's start the session with the very first topic, which is relevant for both phase 1 and phase 2. So guys, before directly moving and jumping ahead to the topic, I would like to give you a very important point that we all know that human resource is really a very important resource for the economy, for any economy, and how the human resource runs through the food, as food acts as a fuel for us humans, right? So that is why guys, and even for example, during the COVID-19 pandemic, we saw a lot of people in our country who were facing the shortage of the food grains, and that is why in March 2020, in order to provide the free food grains to such kind of people, Government of India come up with a very important scheme, that is Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana, under which 5 kg of wheat or rice were being provided to the people free of cost. ठीक है, but guys, in order to make sure that this wheat and price is reaching the beneficiary on time, we need a very good and strong supply chain system. And to improve that, and to improve the efficiency as well as to improve the speediness of the distribution system in our country, Government of India has recently come up with a very innovative step of Anna Chakra. तो अन्न चक्र को यहाँ पर गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है. इसके साथ साथ 2 और इंपॉर्टेंट टूल्स को लॉन्च किया है जिनका नाम है PDS, that is Public Distribution System Supply Chain Optimization Tool, and SCAN, which stands for Subsidy Claim Application for NFSA Portal. ठीक है, तो ये 3 नए इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं और इन तीनों को हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन के अंदर. और व्हाट एग्जैक्टली इज द एम बिहाइंड द लॉन्च ऑफ दीज इनिशिएटिव्स? That is, we want to modernize the public distribution system. जो हमारा existing public distribution system है, हम उसको यहाँ पर modernize करना चाहते हैं. और जो subsidy claim mechanism था, जहाँ पर लोग subsidy claim करते हैं, तो उसको हम बहुत simplify करना चाहते हैं. That is why this particular initiative has been launched by Government of India. तो ये 3 initiatives क्या है? अन्न चक्र, PDS Supply Chain Optimization Tool और SCAN, which stands for Subsidy Claim Application for NFSA Portal. ठीक है, तो ये तीनों चीज हम कवर करेंगे. सबसे पहले हम शुरू करते हैं अन्न चक्र. सो बेसिकली अन्न चक्र की बात करेंगे, सो इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, और इसको बनाया है इन कोलैबोरेशन विद द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड the IIT Delhi Hub, that is Foundation for Innovation and Technology Transfer, FITT of IIT Delhi along with World Food Program, इन्होंने मिलकर डेवलप किया अन्न चक्र को. And what is the aim? As again I told you that the aim is to enhance the efficiency of the PDS logistics. जैसे कि मैंने कहा कि बेनिफिशियरीज तक ये जो अन्न है ये पहुंचना चाहिए टाइमली बेसिस पर. ठीक है, एंड दैट इज वाई वी रियली रिक्वायर टू स्ट्रेंथन आवर लॉजिस्टिक नेटवर्क. हमारा लॉजिस्टिक नेटवर्क, हमारा सप्लाई चेन नेटवर्क काफी स्ट्रांग रहना चाहिए. सो दैट इज वाई टू एनहांस इट्स एफिशिएंसी of the public distribution system logistic network across the country, this Anna Chakra initiative has been launched.
and what it will be doing, it will identify optimal routes and it will ensure seamless movement of the food grains. जो हमारे food grains हैं, अगर जगह जगह पर halts होंगे तो definitely it will not be reaching to the beneficiary on time. So that is why एक seamless movement होना बहुत जरूरी है चीज की. Second thing, एक optimal route. ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर यहां से आप डायरेक्टली यहां पर जा सकते हैं अपने फूड ग्रेन्स को लेके, विच इज द टारगेट प्लेस. सो वी नीड टू गो विद दिस वे एंड नॉट following this longest way. So that is why the major aim of this particular Anna Chakra is to identify the optimal routes, to enhance the efficiency of the PDS logistic network system, and to ensure seamless movement of the food grains across supply chain nodes. And for this guys, an operation of this magnitude which also involves a complex supply chain which will rely on multiple stakeholders starting from farmers to fair price shops. तो यहाँ पर इसके लिए एक ऑपरेशन कंडक्ट किया जाएगा जिसके जरिए we will be including all the stakeholders which are included in the supply chain. Even they are the farmers which are the source, and then the fair price shops where these particular people get these particular grains. So यहाँ पर हर एक को include किया जाएगा and they will be conducting a kind of operation so that we can identify that what should be the possible solution to resolve this particular problem. नाउ गाइस, जब हम बात करते हैं इसका इंपैक्ट क्या होगा, इससे जो स्पीड और एफिशिएंसी है हमारे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की वो एनहांस होगी एंड दैट विल अगेन लीड टू द फूड सेफ्टी नेट टू 81 करोड़ बेनिफिशियरी. जो 81 करोड़ बेनिफिशियरीज ऐसी स्कीम का यहां पर फायदा उठा रहे हैं, उसका बेनिफिट ले रहे हैं, तो उनको यहां पर बेनिफिट मिलने वाला है. इसके अलावा एज वी विल बी आइडेंटिफाइंग द ऑप्टिमल रूट्स, उससे क्या होगा, कॉस्ट सेविंग होगी. कैसे कॉस्ट सेविंग होगी, क्योंकि फ्यूल कंजम्पशन कम लगेगा, टाइम कम होगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट यहां पर कम रहेगी. इससे वी आर एक्सपेक्टिंग दैट वी विल बी एबल टू सेव अराउंड 250 करोड़ पर एनम. तो हर साल 250 करोड़ की बचत हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस अन्न चक्र विच इज एक्सपेक्टेड बाय द गवर्नमेंट. एंड जैसा कि यहाँ फ्यूल कंजम्पशन कम होगा और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को यहाँ पर यूज किया जाएगा, तो उससे एनवायरमेंटल बेनिफिट्स भी रहेंगे एज देयर विल बी अ लोअर कार्बन फुटप्रिंट. तो लोअर कार्बन फुटप्रिंट रहेगा ड्यू टू रिड्यूस्ड ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड एमिशंस. सो ऑल दिस विल बी द इंपॉर्टेंट इंपैक्ट्स ऑफ द अन्न चक्र. So guys, that's how Anna Chakra is going to help in improving the efficiency of the world's largest food security program, which provides safety net to the 81 crore beneficiaries in our country. So this is the first initiative, that is Anna Chakra. Now guys, second initiative is the PDS supply chain optimization tool. एक optimization tool यहाँ पर launch किया जाएगा और इसको establish किया जाएगा which will be basically for the interstate route optimization. तो जैसा कि हमने बात किया था कि जो हमारे identify हमें करने optimal routes, तो उसके लिए एक tool create किया गया जिसका नाम है PDS supply chain optimization tool. So the interstate route optimization tool has been developed for optimization of the PDS movement between the states. जो इंट्रा-स्टेट मूवमेंट्स हैं यहाँ पर दो अलग स्टेट्स के बीच में ये जो भी मूवमेंट है इस ग्रेन की, तो जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मूवमेंट है उसको हम ऑप्टिमाइज करेंगे. और इस टूल को इंटीग्रेट किया गया है अगेन विद द अदर स्टेक होल्डर्स एज वेल, क्योंकि सप्लाई चेन में हमारा रेलवेज काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म को हमने लॉन्च किया है फॉर इंप्रूविंग द लॉजिस्टिक्स, राइट. तो इसीलिए यहाँ पर इसको इसके साथ भी इंटीग्रेट किया गया है. लाइक it has been integrated with the freight operation information system portal, जो कि इंडियन रेलवेज का पोर्टल है, इसको इंटीग्रेट किया गया थ्रू यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म. अपार्ट फ्रॉम दैट एक और माइलस्टोन ये रही कि इस टूल को हम इंटीग्रेट करेंगे विद द पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म which also comprises of geolocations of the fair price shops and the warehouses across the states where these grains are being stored. So guys, these are the points that we need to remember here कि public distribution system supply chain optimization tool कैसे काम करेगा, क्या क्या काम करेगा, we have discussed that. And now moving to the third important initiative, that is the scan. So guys, जब ये लोग यहाँ पर बेनिफिट लेते हैं ऐसी स्कीम्स का, तो यहां पर एक सब्सिडी को क्लेम किया जाता है. तो इस सब्सिडी को क्लेम करने के लिए एक स्कैन पोर्टल लॉन्च किया गया टू सिंप्लीफाई दिस मैकेनिज्म, दैट इज सब्सिडी क्लेम एप्लीकेशन फॉर NFSA portal, that is National Food Security Act portal. So it is going to provide a single window submission. एक single window submission रहेगा सब्सिडी क्लेम के लिए, जहां पर स्टेट्स यहां पर सब्सिडी को क्लेम कर सकता है वेरी इजीली. देन स्क्रूटिनी क्लेम है, अप्रूवल है DFPD का, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन. सो in collective collection, it is going to provide expeditious settlement process
for these subsidy claims. And this will also ensure end-to-end workflow automation. एक automated work रहेगा, human interventions यहाँ पर कम रहेगी सभी processes के अंदर, and that is again it is going to enhance the efficiency of the public distribution system. And that is why these three initiatives has been launched. I hope कि आप सभी को ये तीनों initiatives याद रहेंगे. अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली important news article की तरफ, and that is basically द कंप्यूटेशन ऑफ जीडीपी. सो गाइस वी ऑल नो कि जब भी हम जीडीपी को कंप्यूट करते हैं, जीडीपी को हम कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए एक बेस ईयर यहां पर यूज किया जाता है. ठीक है, एंड टिल नाउ वी वर यूजिंग द बेस ईयर ऑफ 2011-2012, बट नाउ the government of India has decided to change, to update that particular base year, and the new base year will be 2022-2023. So इस पे आगे बढ़ने से पहले you must be having a question कि सर ये GDP क्या है? तो क्या GDP क्या है? Basically it is the measure of the total monetary or market value. जितने भी finished goods, products, सर्विसेज एक कंट्री की बाउंड्री के अंदर एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं, उसकी फाइनल टोटल मॉनेटरी और मार्केट वैल्यू क्या रहती है, दैट इज व्हाट वी कॉल जीडीपी. सो जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट विच इज द मेजर ऑफ द टोटल मॉनेटरी और मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज produced within a country's borders in a specific time period, and that is what we call GDP. So इसी GDP को कैलकुलेट करने के लिए guys this particular base year has been used. Earlier we were using 2011-12 as the base year, and now government has decided to update the base year to 2022-23. That is the most important point that we need to remember here. And why the government do this part? In order to improve the statistical system. ठीक है, और ये जो बेस ईयर है गाइस फॉर द नेशनल अकाउंट्स, ये पीरियोडिकली अपडेट किया जाता है सो दैट वी कैन रिफ्लेक्ट द स्ट्रक्चरल चेंजेस. हमारी इकोनॉमी के अंदर जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए वी बेसिकली यूज दिस बेस ईयर्स, एंड दिस इज ऑल्सो बीन यूज्ड टू प्रोवाइड एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. हमारी जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनकी एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन के लिए दिस पर्टिकुलर पार्ट इज बीन डन. एंड गाइस इसीलिए इसी पर्पस से एक एडवाइजरी कमेटी को भी सेटअप किया. So this advisory committee on national account statistics has been constituted, and this committee will be identifying new data sources and it will advise methodology. जो methodology हम use करते हैं national account statistics को compilation के लिए, उसको यहाँ पर ये review करेगा, उसको advise करेगा, and it will also identify the new data sources for the government. And इस committee, जब भी ऐसी कोई committee बनती है, we need to make sure that we are covering the number of members, who is the chairman of that particular committee, and what is the role of the committee. So this committee हमने already cover किया कि committee क्या करेगी. अब इस committee में members कितने हैं? Total 26 members हैं, and these include representatives from central and state governments, Reserve Bank of India, academia, and the researchers. And who will be the chairperson of this particular committee? So it will be chaired by Bishwanath Goldar, and this committee aims to complete the revision of this base year by early 2026. So early 2026 तक we are targeting that this committee will be able to complete the revision of this particular base year. ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अगर हम बात करते हैं 2011-12 की, तो इसको बेस ईयर कब यहां सेट किया गया था? तो जो करंट जीडीपी सीरीज है विच इज बेस्ड ऑन 11-12 बेस ईयर was released in January 2015. तो जनवरी 2015 में इसको रिलीज किया था, और अभी जो हमारा बेस ईयर है 2022-2023 का, इसको हमने 2024 के अंदर रिलीज किया है. सो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर. तो एक काफी बेसिक और काफी इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है आप सभी के लिए. मेक श्योर कीजिए कि आप इसको याद रखें. अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल की तरफ. सो द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज बेसिकली अबाउट द पीएम ई विद्या. तो पीएम ई विद्या का एक नया डीटीएच चैनल यहां पर लॉन्च किया गया है, एंड दैट इज बेसिकली स्पेसिफिकली लॉन्च फॉर इंडियन साइन लैंग्वेज. ठीक है, तो चैनल नंबर 31 दैट इज लॉन्च फॉर द इंडियन साइन लैंग्वेज. इट हैज बीन रिसेंटली लॉन्च्ड, एंड दिस चैनल विल बी प्रमोटिंग द इंडियन साइन लैंग्वेज एज अ लैंग्वेज, और ना कि सिर्फ लैंग्वेज बल्कि एक स्कूल सब्जेक्ट के तौर पर ये प्रेजेंट करेगा, जिससे कि जो लार्जर पॉपुलेशन है हमारी उसको एक्सेसिबिलिटी हो अबाउट द इंडियन साइन लैंग्वेजेस, सो दैट दे कैन लर्न दिस लैंग्वेज. और ये जो चैनल है इट विल बी डिसेमिनेटिंग लर्निंग कंटेंट. तो स्कूल चिल्ड्रन, टीचर्स, टीचर एजुकेटर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स, इन सभी के लिए एक लर्निंग कंटेंट प्रोवाइड करेगा ये पीएम ई विद्या का डीटीएच चैनल विच इज बीन लॉन्च्ड फॉर द इंडियन साइन लैंग्वेज. एंड दिस विल प्रोवाइड the learning content across the different areas. It can be the career guidance, skill training, mental health, class wise curricular content, communication skills, and other important
एरियाज। तो इन सभी एरियाज के अक्रॉस ये इंपॉर्टेंट लर्निंग कंटेंट प्रोवाइड करेगा टू ऑल इट्स स्टेक होल्डर्स। ठीक है, सो अगर हम बात करेंगे इस पीएम विद्या की, सो पीएम ई विद्या क्या है? बेसिकली एक इनिशिएटिव है विच इज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और हमारे जितने भी गवर्नमेंट के ऐसे इनिशिएटिव्स हैं वेयर वी आर making an effort related to bringing the education to the online or the digital format, that is related to digital online or on air education to enable multi-mode access to the education, तो ये पीएम ई विद्या के थ्रू किया गया है, and this is going to benefit nearly 25 crore school going children across the country. तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस, राइट? तो पीएम ई विद्या एक यूनिक इनिशिएटिव है अपने आप में ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एंड इट फैसिलिटेट मल्टी मोडल एक्सेस टू द एजुकेशन। और ये कैसे हम प्रोवाइड करते हैं? थ्रू द डिजिटल और ऑनलाइन मोड्स। अगर हम बात करें कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर्स अबाउट द पीएम ई विद्या, तो ये एनेबल करता है डिजिटल, ऑनलाइन और ऑन एयर एक्सेस टू एजुकेशन। 25 करोड़ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को हेल्प करता है। सो दीक्षा एक इसका पार्ट है, दैट इज द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। स्वयं ऑनलाइन कोर्सेज भी लॉन्च किए गए हैं इन द फॉर्मेट फॉर स्कूल एंड द हायर एजुकेशन, and we are having one earmarked TV channel per class from 1 to 12 under the PM E-Vidya scheme. There is extensive usage of radio, community radio and the CBSE podcast, that is Shiksha Vani. Then एक special e-content है for visual and hearing impaired. तो आप देख सकते हो कि to all the stakeholders there is a kind of value addition points under the PM E-Vidya, and that is why we are covering this part, और PM E-Vidya का नया DTA channel for sign language launch किया गया है। ठीक है, so I hope this is clear to all of you. Now let's move on to the other news articles which are relevant for only phase 1 of the exam. So सबसे पहली news article that we were waiting for a very long time, who will be the new chief minister of Maharashtra, and yesterday देवेंद्र फडणवीस जी has taken oath as the 21st chief minister of Maharashtra, और उसके साथ ही उनके साथ दो और मिनिस्टर्स बने हैं, दैट इज द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स। तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर दो लोग बने हैं, दैट इज एकनाथ शिंदे एंड अजित पवार। और एकनाथ शिंदे की बात की जाए तो ही इज द पर्सन हु इज द आउटगोइंग सीएम। सो एकनाथ शिंदे वाज अर्लियर सर्विंग एज द सीएम ऑफ द महाराष्ट्र, एंड ही विल बी रिप्लेस्ड बाय देवेंद्र फडणवीस एज द 21st चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। I hope this part is absolutely clear to you. Moving to the next news article, guys, that is an international advisory body for submarine cable resilience. So guys, अगर हम बात करें सबमरीन की, तो सबमरीन टेलीकम्युनिकेशन केबल्स हमारे ग्लोबल कम्युनिकेशन का बैकबोन है। कुछ ऐसी केबल्स आप देख सकते हो कि अंडर द सी दे आर गोइंग, एंड दे आर अप्रोक्सीमेटली कैरिंग 99% ऑफ द इंटरनेट ट्रैफिक, and they support different critical services, for example commerce, finance, गवर्नमेंट ऑपरेशंस, डिजिटल हेल्थ, एजुकेशन। तो ऐसी डिफरेंट क्रिटिकल सर्विसेज को ये जो केबल्स हैं ये यहां पर हेल्प करती हैं थ्रू द इंटरनेट। तो 99% इंटरनेट ट्रैफिक आपका इन्हीं केबल्स के थ्रू जाता है गाइस, एंड फॉर द protection of these particular cables and the challenges that these cables face, this advisory body has been set up, and this advisory body is named as International Advisory Body for Submarine Cable Resilience. ठीक है, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है केबल रेजिलियंस, और ये किसका इनिशिएटिव है? इट इज द इनिशिएटिव ऑफ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, क्योंकि Telecom also plays a very important role in that part. Apart from that, International Cable Protection Committee, तो केबल की प्रोटेक्शन के लिए केबल प्रोटेक्शन कमेटी है वर्ल्ड लेवल पे, और साथ ही साथ टेलीकम्युनिकेशन के लिए टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है। तो इन दोनों ने मिलकर लॉन्च की एक ऐसी सबमरीन केबल रेजिलियंस इंटरनेशनल एडवाइजरी बॉडी विच इज गोइंग टू वर्क फॉर द स्ट्रेंथनिंग द रेजिलियंस ऑफ सबमरीन केबल्स। जो सबमरीन केबल्स हैं इनकी रेजिलियंस को बढ़ाना, इसको और स्ट्रेंथन करने के लिए दिस पर्टिकुलर बॉडी हैज बीन क्रिएटेड, एंड दिस विल रियली प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फंक्शनिंग ऑफ द ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी. This is going to address the growing challenges and ensure the continued resilience of this critical infrastructure. So guys, ये resilience क्यों चाहिए हमें? क्योंकि there are various some natural events, fishing, anchoring, which basically led to the damage of such kind of submarine cables, and that is why we need some protection for these particular cables. अगर हम बात करें इस बॉडी का क्या रोल रहेगा, तो ये बॉडी प्रमोट करेगी बेस्ट प्रैक्टिसेस अक्रॉस द गवर्नमेंट्स एंड इंडस्ट्रीज, सो दैट हम अपने केबल रेजिलियंस को इंप्रूव कर सकें, रिस्क को रिड्यूस कर सकें, इसके डैमेज का वी कैन इंश्योर द स्विफ्ट रिपेयर एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ दीज वाइटल सिस्टम्स। तो यहां पर डिप्लॉयमेंट अच्छा हो सके, रिपेयरमेंट अच्छा हो सके, सो दैट इज वाई दिस पर्टिकुलर बॉडी हैज बीन क्रिएटेड। अगर हम बात करते हैं इस एडवाइजरी बॉडी की, इट विल कंप्राइज ऑफ टोटल 40 मेंबर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड,
इसको को चेयर करेंगे एचई मिनिस्टर बोसुन तिजानी जो कि नाइजीरिया के मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन है। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोफेसर सेंड्रा मैक्सिमियानो जो चेयर हैं अबाउट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ पोर्तुगल्स नेशनल कम्युनिकेशन अथॉरिटी, तो ये दोनों ही को-चेयर करने वाले हैं इस 40 मेंबर की बॉडी को। और इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो इंडिया से हु विल बी द रिप्रेजेंटेटिव, सो दैट पर्सन इज डॉक्टर नीरज मित्तल। ही विल बी रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन द 40 मेंबर इंटरनेशनल एडवाइजरी बॉडी। अगर हम बात करते हैं जो केबल प्रोटेक्शन कमेटी की हमने बात की, दैट इज द इंटरनेशनल केबल प्रोटेक्शन कमेटी। इसको 1958 के अंदर फाउंड किया गया था और ये गवर्नमेंट और कमर्शियल एंटाइटीज का एक ग्लोबल फोरम है which is basically for the submarine cable industry. So I hope that ये सभी details आपको एकदम clear हैं। What is the name of the advisory body, how many members are there, who will be the co-chair, और क्योंकि ये नई advisory body बनी है तो इंडिया की तरफ से कौन representative हैं, ये सारी details हमें याद करना important है exam point of view से। Now let's move on to the next news article. So that is $50 million लोन अग्रीमेंट हैज बीन साइंड फॉर द मेघालय। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ मिलकर $50 मिलियन लोन अग्रीमेंट साइन किया है एंड दे विल बी वर्किंग फॉर द क्लाइमेट अडेप्टिव वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट इन द इंडियन स्टेट ऑफ मेघालय। तो मेघालय के अंदर क्लाइमेट अडेप्टिव वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया जाएगा। इससे हम वाटर सिक्योरिटी जो है मेघालय स्टेट के अंदर उसको एनहांस करेंगे बाय कंस्ट्रक्टिंग वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स so that we can enhance the accessibility of the water for the people and we can reduce community vulnerability against climate change। तो climate change की वजह से जब भी कभी पानी की कमी होती है तो वाटर की जो स्कैर्सिटी है, वाटर सिक्योरिटी हमें वहां के लोगों को प्रोवाइड करना है। सो एज अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर लोन अग्रीमेंट गाइस, व्हाट एग्जैक्टली दे विल बी डूइंग, दे विल बी सपोर्टिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ 532 स्मॉल वाटर स्टोरेज फैसिलिटी। तो वाटर स्टोरेज फैसिलिटीज को यहाँ क्रिएट किया जाएगा। 3000 हेक्टेयर्स का कमांड एरिया डेवलप किया जाएगा सो दैट हम जो रिलायबल इरिगेशन एरियाज हैं फार्मर्स को प्रोवाइड कर सके। इसके साथ साथ 50 वेदर स्टेशंस को यहां सेटअप किया जाएगा फॉर क्लाइमेट डेटा गैदरिंग। तो क्लाइमेट डेटा गैदरिंग भी काफी जरूरी है सो दैट वी कैन डेफिनेटली वर्क efficiently for the storage of this water and enhancing the water security for the people of the state of Meghalaya। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एडीबी की, तो एडीबी के 11th प्रेसिडेंट के बारे में हमने येस्टरडे अपने लास्ट सेशन के अंदर डिस्कशन किया था और आपके लिए होमवर्क है, आप मुझे बताएंगे कि एडीबी के 11th प्रेसिडेंट कौन बने हैं रिसेंटली। ठीक है, आई होप कि ये काफी इजी क्वेश्चन है आप सभी के लिए और आप सभी इसका आंसर मुझे करेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल, दैट इज द ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड। सो बेसिकली इट इज इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन गुड प्रैक्टिस अवार्ड्स देती है फॉर एशियन पैसिफिक रीजन 2024। तो ये रिसेंटली दिया गया है इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन गुड प्रैक्टिसेस अवार्ड फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। अगर हम बात करें इंडिया के अंदर जो सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है जो काफी ज्यादा काम करती है एंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मच ऑफ द थिंग्स, दैट इज एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज EPFO। ठीक है, तो इंडिया को ऑनर किया गया है ड्यूरिंग दिस अवार्ड सेरेमनी विच वाज हेल्ड ड्यूरिंग द रीजनल सोशल सिक्योरिटी फोरम जो कि सऊदी अरेबिया के अंदर रिसेंटली कंडक्ट किया गया था। एंड ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर फोरम एज वी हैव सेड दैट इंडिया वाज बीन ऑनर्ड, सो इंडिया से वो ऑर्गेनाइजेशन जिसको यहां पर ऑनर किया गया दैट इज EPFO विच हैज रिसीव्ड 5 सर्टिफिकेट्स ऑफ द मेरिट। और ये जो सर्टिफिकेट है ये सिग्निफाई करते हैं द कमिटमेंट एंड द रोल ऑफ द EPFO to reform and adopt good practices in its organization। EPFO की अगर हम बात करें तो इसको स्पेशल मेंशन मिला है डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट्स के लिए जिसको हम जीवन प्रमाण पत्र भी बोलते हैं। अगर हम बात करें जीवन प्रमाण पत्र की गए सो एक एडिशनल फैसिलिटी है जहां पर जो हमारे पेंशनर्स हैं वो अपना जीवन का प्रमाण पत्र देते हैं दैट दे आर अलाइव एंड दैट्स व्हाई दे शुड बी गिवन द पेंशन। सो इट इज एन एडिशनल फैसिलिटी फॉर फाइलिंग लाइफ सर्टिफिकेट्स for pensioners enabled by the biometric authentication system which is आधार बेस्ड। तो एक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की ये जो सुविधा प्रोवाइड करता है EPFO और उसके लिए इसे स्पेशल मेंशन मिला है फॉर द डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट्स। Okay, so I hope that this point is also clear to all of you. Now guys, let's start solving the MCQs here. So first question for all of you for the practice, let us see who will be giving me the right answer to this question. तो पहला क्वेश्चन है हमारा इंटरनेशनल एडवाइजरी बोर्ड फॉर सबमरीन केबल रेजिलियंस के ऊपर। सो यहां पर 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, वी नीड टू आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट्स व्हिच आर इनकरेक्ट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट, एडवाइजरी बॉडी हैज बीन क्रिएटेड बाय इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन एंड ICPC, एब्सोल्युटली राइट। 40 मेंबर्स हैं इसके अंदर अराउंड द वर्ल्ड एंड विल बी co-chaired by representatives of Nigeria and Portugal, absolutely right. Aim is to strengthen submarine cable resilience
addressing broader global challenges beyond telecommunications. So guys, अगर हम बात करें इन तीनों स्टेटमेंट्स की तो all the statements are correct, so we were required to identify incorrect statement. So option E will be the right answer, as none of the above will be the right answer because all the statements are correct here. Moving to the second statement, it is the second question is on the Anna Chakra and Scan portal. Again, three statements are being given. So the Anna Chakra is developed by DFPD in collaboration with World Food Program and IIT Delhi, absolutely right. Scan portal provides single window for submission and approval of subsidy claims by the states, absolutely right. Third statement is Anna Chakra will only optimize food grain distribution within a single state. Guys, single state में नहीं बल्कि multiple states के बीच में जो भी यहाँ transportation रहेगा उसको optimize करेगा. So third statement is incorrect. Right answer will be option A, that is 1 and 2. I hope कि आप सभी ने इस question का आंसर एकदम correctly किया है. बढ़ते हैं अगले question की तरफ. So next question is about the $50 million loan agreement between Government of India and ADB. So आपके सामने three statements हैं. You need to identify the correct statement. So project will construct 532 small water storage facilities across 12 districts, absolutely right. It will establish 50 weather stations in Meghalaya for climate data gathering and monitoring, but will not focus on irrigation system. So guys, हमने cover किया था इसको कि irrigation system पर भी focus करेगा. So that's why this statement is incorrect. Third statement is primary objective of the project is to reduce community vulnerability to climate change by improving water security and providing irrigation in the Garo, Jaintia and Khasi regions. So again, this statement is also correct. Right answer is option B, that is only 1 and 3. So guys, अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने इन क्वेश्चन का आंसर करेक्टली नहीं दिया, डो नॉट वरी, आई एम हैविंग अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू एज वेल. सो इस सेशन के बाद आप इस होमवर्क क्वेश्चन पर आकर इसको सेशन को स्टॉप कीजिएगा और मुझे बताइएगा व्हाट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन. ओके, और जो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का सही आंसर देंगे दे विल बी द स्टार परफॉर्मर्स फॉर द टुडे सेशन. सो अगर हम बात करें आज के सेशन के हमारे स्टार परफॉर्मर्स कौन है, सो in the previous session I asked you the question on the Parakh Rashtriya Sarvekshan 2024. Right answer to the question is only 1 and 2 are correct here. And Sabyam, Facto, Saladisal, Karantiwari and Anu Unique, Guru Raj, Prajwal, all these people have given me the right answer, guys. So you are the star performers of the previous session and well done. And if you also want your name to be here in the as the star performers, make sure you are giving me your right answers in the comment section. Okay, so guys, that was all from the today's session. अगर आप अब भी नए हैं हमारे सेशन में तो डेफिनेटली आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे सेशन की PDF एक्सेस करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर. So guys, that was all from the today's session and now I will be meeting you in the next session. Till then, stay happy, stay healthy. Wish you all happy learning.